सर पिछले लेक्चर की आप पिछले लेक्चर की जी शीट जरूर शेयर कर दें। पिछले लेक्चर की शीट मैंने शेयर की थी गूगल क्लासरूम पे। अभी आप ज़रा इसको देखिए। गूगल क्लासरूम में जाएं, क्लास वर्क में। चलो मैं क्लास के उसमें पढ़ रहा हूँ। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आप उसमें ओपन करें ना, तो पिछले लेक्चर की शीट्स मिल जाएगी आप। ओके ना बेटा, हमने क्लास के एंड में बेटा मुझे रिमाइंड करवाएं, मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि हाउ टू प्रोसीड, ये होमवर्क को हमने कैसे लेना है, इन ऑनलाइन क्लासेस में क्या एक्टिविटीज़ करनी है। ओके, और वो मिड टर्म एग्जाम आप लोगों का उसका क्या स्टेटस है, ये मुझे क्लास के एंड पे ज़रा रिमाइंड करवाएं। विल डिस्कस दैट एज वेल। अच्छा बेटा, नाउ टुडेज we will begin with this thing, that comparison of properties. Okay, comparison of physical properties of S block elements with D block elements, of S block elements with D block elements, with D block elements, right? Acha. Now, from S block elements, we will take calcium. S block से we will take calcium, और D block में हमारे पास सारे transition elements हैं. Now, why we are taking calcium? क्योंकि right after calcium, scandium is present. So transition elements, जो पहली रो है transition element की, that is started right after calcium. तो calcium is a representative of S block element. ठीक है, हम कैल्शियम की प्रॉपर्टीज को डी ब्लॉक एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे. सो इन दिस केस कैल्शियम इज रिप्रेजेंटिंग एस ब्लॉक एलिमेंट. कैल्शियम ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर 20 है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो पहली रो है उसका फर्स्ट मेंबर इज स्कैंडियम. तो स्कैंडियम्स प्रोटॉन नंबर इज 21. तो कैल्शियम को एज अ रिप्रेजेंटेटिव हम लेके कंपेयर कर रहे हैं ना. बेटा पहली थिंग इज डेंसिटी. तो बेटा आप बताओ कि किसकी, कैल्शियम की डेंसिटी ग्रेटर है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की? transition elements. हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज ग्रेटर डेंसिटी. ओके, ग्रेटर डेंसिटी, while calcium has less density than D block elements, than D block elements. अच्छा, इसकी रीजन क्या है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेंसिटी क्यों ग्रेटर है? अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस रिमेन्स सेम. In previous lesson we discussed that transition elements में the radius remains same. अच्छा, जब radius remains same और mass number is increasing, तो जब radius same है इसका मतलब है size is constant and mass number is increasing. तो जब mass increase हो और size constant रहे तो obviously density will increase. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में when you go left to right in transition elements, atomic radius is almost constant, right? And this atomic radius is constant because shielding is increasing as well as proton number increasing. Proton number increase हो रहा है, shielding भी increase हो रही है, both will cancel each other's effect. तो इस वजह से radius is constant. What happened कि across the transition elements atomic radius is constant. Atomic radius is constant while mass is increasing. While AR is mass, okay? Atomic mass is increasing. So this cause increase in density. Right?
अच्छा, और सिमिलरली हम कैल्शियम से अगर कंपेयर करें तो कैल्शियम का mass is less, which cause lesser density for calcium, and transition elements में across अगर हम मूव करें तो density is increase, और generally transition element की density greater है S block element से. If you have any question, you should openly ask the question. And the second comparison you require, beta, is melting point. Okay. So which element has greater melting point? Transition elements or S block elements? Sir, Transition elements has greater melting point, right? And S block elements has less melting point than transition elements. Why? Why transition elements has greater melting point, beta? For what reason? Beta, transition elements में metallic bond strength is greater. Metallic bond strength is checked for melting point of metals. Metals का melting point अगर देखना हो तो that is checked through metallic bond strength. So metallic bond strength is greater for transition elements. Metallic bond strength is greater in D block elements. Why, beta? Why is it so? In D block, जी बेटा, चार्ज ग्रेटर होता है. अच्छा, इसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में. जो डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी टेक पार्ट करते हैं इन डीलोकलाइजेशन. ठीक है. सो ड्यू टू ग्रेटर चार्ज और ग्रेटर डीलोकलाइजेशन of electrons. Wait, beta. Greater delocalization of electrons. The melting point of transition elements is greater as compared to S block elements, right? So according to syllabus, ये दो comparisons हैं which are required for transition elements in comparison with S block elements, right? उसके बाद बेटा the section which we are starting is very very सर एक important. सेकंड ऊपर जा सकते हैं? जी जी बेटा. जी बेटा, any question? जी बेटा, any question? मैंने ठीक है सर, बस लिख रहा था मैं. ठीक है, लिख लिया. Okay, okay. Now बेटा, the next concept is, और इस आप जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जी बेटा, anyone want to say something? Okay. अच्छा बेटा, now we want to clear the concept regarding ligands. Okay. We need to understand what is ligand. Okay. और ligand के बाद we will discuss complexes, complex compounds और complex ions. पहले ligands को समझना. यस बेटा, मैंने AS में जो आपको बताया था, किसी को याद है कि what are ligands? सर, जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए. ठीक है, जिस पार्टिकल के पास एक लोन पेयर हो और वो पार्टिकल कैन मेक अ डेटिव बॉन्ड. जिस पार्टिकल के पास एक लोन पेयर हो एंड दैट पार्टिकल कैन मेक अ डेटिव बॉन्ड, सो सच पार्टिकल इज नोन एज लिगेंड. अ स्पीशी which has a lone electron pair and can make dative bond
So such species or such particle is known as ligand. ठीक हो गया? Now we have two types of ligands. Neutral ligands. Neutral ligands has no charge. They can make dative bond, but they itself are neutral. Like H2O beta is ligand, okay? Why H2O is ligand? Because lone pair is present on oxygen. In fact, दो lone pair present हैं. एक एटम के पास जितने भी लोन पेयर हों वो डेटिव बॉन्ड एक ही बनाएगा. वन डेटिव बॉन्ड, वन लोन पेयर इज कंट्रीब्यूटेड फॉर डेटिव बॉन्ड पर एटम. एक एटम के पास जितने भी लोन पेयर हों, द एटम विल कंट्रीब्यूट ओनली वन लोन पेयर फॉर डेटिव बॉन्ड. तो दिस H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड. इसी तरह NH3 अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन हैज लोन पेयर. So this is also a neutral ligand. ठीक है? अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड्स के बाद we have negatively charged ligand. Negatively charged ligands are also discussed. अच्छा, one of the negatively charged ligand is chloroligand. A chloroligand is negatively charged and it has lone electron pair. अच्छा, ये CN सायानोलिगेंट, इसका नेम खैर है याद होना जरूरी नहीं है. ये CN नेगेटिव, इसमें कार्बन का लोन पेयर यूज होगा फॉर डेटिव बॉन्डिंग. CN में बेटा नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन कार्बन का लोन पेयर विल बी यूज फॉर डेटिव बॉन्डिंग. ओके, इट्स नेम इज सायानो, बट नो नीड टू मेमोराइज द नेम. एंड दिस इज NH2 नेगेटिव. तो दिस वन इज एमाइनो लिगेंड. इसका नेम भी याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव लिगेंड है. ठीक है, एमाइनो लिगेंड विद लोन इलेक्ट्रॉन पेयर. अच्छा, हाइड्रोक्सी लिगेंड है बेटा, इसका भी नेम याद करना जरूरी नहीं है, बस ये पता हो आपको कि ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं. ठीक है, ये ऊपर वाले लिगेंड्स न्यूट्रल हैं, नीचे वाले लिगेंड्स नेगेटिव लिगेंड्स हैं. और इनको हम लिगेंड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे हैव लोन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दे कैन मेक डेटिव बॉन्ड. ठीक है. अच्छा, नाउ इन लिगेंड्स के बाद बेटा आई वांट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आयन. ओके, बोथ वेज आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स आयंस. यू कैन आल्सो रेफर इट टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ये क्या होते हैं? अच्छा, इन ऑर्डर टू डिफाइन कॉम्प्लेक्सेस, पहले तो देखिए एक इस डायग्राम. ओके, मैं भी डिफाइन करता हूं. ओके, now beta, you remember one of the reactions from AS inorganic chemistry. What you have studied about this reaction from AS inorganic chemistry? Do you remember this reaction? You remember that silver chloride were white precipitates, AgCl or white precipitate. What happens कि हम अमोनिया ऐड करें white precipitate of silver chloride में? अमोनियम क्लोराइड. नहीं बेटा, हमने और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? AS की. सर नहीं यार. जी, एनीवन इन द क्लास? यू रिमेंबर हमने पढ़ा था सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. सिल्वर अमोनिया complex is formed. अच्छा, silver ammonia complex will be like this. देखो बेटा, here we have silver ion. ठीक है, one ammonia will be placed here, the other ammonia will be placed here. अच्छा, nitrogen of ammonia has lone pair, this nitrogen also has lone pair. तो ये lone pair से a dative bond will be formed with silver ion, और इस तरफ से भी a dative bond will be formed with silver ion.
और ये जो Ag पे प्लस चार्ज है, दिस चार्ज विल बी टेकन हेयर। ठीक है, सर तो दिस जो ब्रैकेट में हमने आयन लिखा है, दिस वन इज सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। जी सर बेटा, दिस इज कॉम्प्लेक्स। जी बेटा, यस। सर अभी आपने कहा कि एक डेटिव बॉम्ब बनता है हमेशा एक एटम, हाँ ना, तो ये एक एटम है ना, और ये दूसरा एटम है ना। तो सर एजी भी तो बन रहा है, जी एजी में तो बन रहा है। नहीं, मैंने कहा कंट्रीब्यूट करने वाला। एक एटम के पास, मैंने ये कहा है कि एक एटम के पास जितने भी लोन पेयर हों, वो एक लोन पेयर कंट्रीब्यूट करेगा फॉर डेटिव बॉन्ड। ये मैंने कहा है। सही है सर। एक एटम के पास जितने भी लोन पेयर हों, सपोज 3 लोन पेयर हैं किसी एटम के पास, तो वो कंट्रीब्यूट एक लोन पेयर करेगा फॉर डेटिव बॉन्डिंग। ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये सामने आप देख रहे हो जो ब्रैकेट में आयन है, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इधर बनेगा क्लोराइड आयन। तो अब देखो AgCl वॉज सॉलिड ना, लेकिन राइट हैंड साइड पे दोनों की स्टेट सिंबल इज एक्वस। आयन कभी सॉलिड नहीं हो सकता। जो आयन होता है ना, वो उसकी स्टेट सिंबल एक्वस कंसिडर होगी। तो AgCl इज डिसॉल्व, व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए, एज अ रिजल्ट ये कॉम्प्लेक्स बना। अब बेटा कॉम्प्लेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे इस डायग्राम को देख के? कॉम्प्लेक्स को हमें कैसे डिफाइन करना चाहिए सीइंग दिस डायग्राम? कंपाउंड विद डेटिव बॉन्ड। हाँ, when ligands make dative bond with central metal ion, when ligands make dative bond with the central metal ion, then the resulting ion या compound is complex. ठीक है, so we'll define it like this: when ligands make dative bond with central metal ion, then the resulting ion या compound is known as complex, is known as complex, right? अच्छा, अब इसको फर्दर एलोबरेट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा, यूजुअली देखो बेटा, अब मैं क्वेश्चन कर लेता हूं। चलो, अगर मैं ऐसे लिखूं Cu ब्रैकेट में Cl होल टेकन ट्वाइस, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट हो, एंड स्क्वायर ब्रैकेट इज 1 माइनस। इस तरह का अगर आयन है तो दैट आयन विल बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आयन कंसिडर होगा। ठीक है, अब बेटा आपने मुझे बताना है इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? कॉपर। कॉपर इज द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये मैं ले रहा हूं कॉपर। अच्छा, इसमें लिगेंड्स कौन से हैं? Cl नेगेटिव। Cl लिगेंड है। कितने लिगेंड्स हैं? 2 लिगेंड्स हैं। ठीक है, यू हैव 2 Cl, तो एक Cl इधर है, दूसरा Cl इधर है। नाउ यू नो दैट Cl हैज लोन पेयर। अच्छा, ये Cl नेगेटिव हैं दोनों। क्लोरो लिगेंड्स हमने ऊपर डिस्कस किया कि नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, तो एक Cl नेगेटिव लिगेंड विल मेक अ डेटिव बॉन्ड एयर, और दूसरा Cl नेगेटिव विल मेक अ डेटिव बॉन्ड एयर। ठीक है, अच्छा, ये ओवरऑल चार्ज 1 माइनस है। ओवरऑल चार्ज 1 माइनस है, तो इस कॉपर पे फिर क्या चार्ज होगा? +1। हाँ, कॉपर पे बेटा क्या चार्ज होगा? +1 चार्ज होगा। कॉपर पे +1 चार्ज होगा तो तभी ओवरऑल चार्ज 1 माइनस आएगा। समझ आ रही है? ठीक है, सो now this is complex, this copper is central metal ion, copper is central metal
आयन, और जो Cl हैं ये लिगेंड्स हैं, ठीक है, क्लोरो लिगेंड्स हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये डेटिव बॉन्ड बन कहाँ रहा है। तो देखो, इफ यू कंसिडर कॉपर 1+, कॉपर प्रोटॉन नंबर is 29, और हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एंड देन 3d10 और 4s0। अच्छा बेटा, 4s के बाद 4p भी तो है ना, वो वेकेंट है। 4s, देन 4p, देन 5s। अब जितने ऑर्बिटल्स हैं 3d के बाद ये सब वेकेंट हैं, ठीक है। Now 4s0 is like this is vacant orbital. Now 4p is like this is vacant orbital. 5s is like this, vacant orbital. ठीक है, तो अब इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में द लिगेंड्स विल कम। अब ये क्लोरोलिगेंट है, क्लोरोलिगेंट हैज लोन पेयर, the other chloroligand has lone pair, तो ये lone pair can make a dative bond here in this vacant orbital. The lone pair can make a dative bond in this vacant orbital. तो दो क्लोरोलिगेंट हैं, तो दो वेकेंट ऑर्बिटल्स यूज होंगे फॉर डेटिव बॉन्डिंग, सर राइट जी बेटा। तो सर इनका रेडियस बढ़ जाएगा? इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। ठीक है बेटा, आपको समझ आई कि हर ट्रांजिशन मेटल लाइन में वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे जिनमें लिगेंड्स जाके डेटिव बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब लिगेंड्स जाके डेटिव बॉन्ड फॉर्म करेंगे सेंट्रल मेटल आयन से, तो कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, ओके, तो अब ना बेटा, यस बेटा, कोई लिख रहा है तो उसको लिख लें। देन मैंने आपको शेप्स बतानी है, ओके। अच्छा बेटा, ना इस टेबल को जरा ध्यान में रखिए। अच्छा, उससे पहले बेटा एक और कॉन्सेप्ट देखिए। बेटा, नेक्स्ट थिंग इज कोऑर्डिनेशन नंबर। Coordination number is beta number of dative bonds that are made with the central metal ion. Number of dative bonds. Number of dative bonds in a complex. Yeah, number of dative bonds that are made with central metal ion. उसको हम बोलेंगे coordination number, central metal ion. ठीक है, जितने डेटिव बॉन्ड्स होंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बेटा बताओ मुझे कि इस यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस कॉम्प्लेक्स में? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? हाँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्योंकि दो डेटिव बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स में जितने डेटिव बॉन्ड होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, और बेटा चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या होगा? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स होगा कि लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज का जो सम है दैट विल बी चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज द सम ऑफ चार्जेस ऑफ लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो चार्जेस का जो सम होगा वो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा। ये अभी मैं प्रैक्टिस करवाता हूं इसकी। अच्छा, ओके, ये तो बेटा आपको पता है ना, क्लोरोलिगेंड नेगेटिव होगा, ठीक है, ये याद रखना है। क्लोरोलिगेंड नेगेटिव होगा, ये OH लिगेंड विल बी नेगेटिव, CN लिगेंड विल बी नेगेटिवली चार्ज, NH2 लिगेंड विल बी नेगेटिवली चार्ज, while H2O ligand will be neutral. अमोनिया लिगेंड विल बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। लेफ्ट साइड वाले लिगेंड्स नेगेटिव लिगेंड्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगर के ऐसा हो, दिस इज कॉपर एंड दिस इज Cl,
Cn 4 and 2 माइनस। अच्छा, अब बेटा इसमें ये बताओ मुझे कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? कॉपर। सेंट्रल मेटल आयन इज कॉपर, ठीक है। और लिगेंड्स कौन से हैं? Cn लिगेंड्स हैं, और Cn लिगेंड्स 4 हैं। अच्छा, अब अगर 4 लिगेंड्स हो ना तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये एग्जामिनर कोई ना कोई आपको आइडिया देगा। मे बी ये कॉम्प्लेक्स 2D हो, ठीक है, इसके 4 लिगेंड्स हैं और कॉम्प्लेक्स 2D है। अगर 2D है तो फिर आपने इसको स्क्वायर प्लेनर बनाना है। अगर ये गिवन हो, ये गिवन होगा, आपको कोई आइडिया गिवन होगा रिगार्डिंग 2D। अगर 4 लिगेंड्स हैं सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड और ये गिवन है कि शेप 2D है, तो फिर कॉम्प्लेक्स विल बी स्क्वायर प्लेनर। ये भी मैं टेबुलेट कर दूंगा सब। कॉम्प्लेक्स विल बी स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपने यूं ड्रॉ करना है, ये 1, ये 2, ये 2 डेटिव बॉन्ड्स हैं, ये 3rd डेटिव बॉन्ड है, ये 4th डेटिव बॉन्ड है। 4 डेटिव बॉन्ड आपने प्लेस किए। अच्छा, अब वन ऑफ द लिगेंड इज Cn, तो इधर लोन पेयर, ये लोन पेयर शो करना है शेप में। दूसरा Cn है बेटा, ये 3rd Cn है, ये 4th Cn है। और फिर ब्रैकेट प्लेस करें, स्क्वायर ब्रैकेट, और ओवरऑल चार्ज इसका -2 गिवन है। ओवरऑल चार्ज इज -2। अच्छा, अब बेटा हमने ये पढ़ा, अब इसका बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अच्छा, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और शेप 2D हो तो उसका नेम होगा बेटा फिर शेप का स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और शेप 2D हो तो इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, मुझे बताओ कि जो Cn है वो नेगेटिव लिगेंड है, राइट? Cn नेगेटिव लिगेंड है, तो अब इस कॉपर पे क्या चार्ज होना चाहिए कि ओवरऑल चार्ज इज -2? 2+। हाँ बेटा, ये आपसे पूछेंगे चार्ज ऑन कॉपर, चार्ज ऑन Cu। तो चार्ज ऑन Cu आप इस तरह, Cn का चार्ज आपको पता है कि 1- है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स का -4 है, और कॉपर का चार्ज नहीं पता, और ओवरऑल चार्ज इज -2, तो X शुड बी +2। तो कॉपर का चार्ज क्या होना चाहिए? +2 होना चाहिए। इसमें बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आपसे एग्जाम में ये पूछेंगे ये क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि इस शेप का नेम बताएं, तो नेम स्क्वायर प्लेनर। आपसे ये पूछ सकते हैं कि कॉपर पे क्या चार्ज है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। जी बेटा, किसी को समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। अच्छा, देखो मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दूं कि लेट्स से कि कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस इज गिवन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। हाउ मेनी लिगेंड्स? हाँ, 4 OH लिगेंड्स है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अच्छा, अगर ये गिवन हो कि दिस इज 3D, अगर ये गिवन हो कि दिस शेप इज 3D, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और शेप इज 3D, तो देन शेप विल बी टेट्राहेड्रल, देन शेप विल बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऊपर मैंने जो बताया उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, लेकिन 2D शेप थी, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 2D शेप हो तो देन दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। लेकिन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 3D शेप हो तो दैट इज टेट्राहेड्रल।
अब how to draw it? So I hope that you can draw a tetrahedral shape. You should take cobalt here. This is one data bond, ये second data bond, third data bond को as a wedge लीजिए, fourth data bond को as a dotted लीजिए. You used to draw a tetrahedral shape like this in AS. ठीक है? And ligand over here is OH, तो O का lone pair, and this H. Then this is another OH. The third OH will be placed here. The fourth OH will be placed here. And तो OH नेगेटिव नहीं होगा? हाँ, OH नेगेटिव है, लेकिन लिगेंड का चार्ज शो नहीं करते, ओवरऑल चार्ज शो करते हैं, वो -1 है. अच्छा सर, सही. OH नेगेटिव है, लेकिन लिगेंड्स का चार्ज अंदर कॉम्प्लेक्स में शो नहीं करना. ना ही देखो कोबाल्ट पे कोई चार्ज शो किया हुआ, लेकिन ओवरऑल चार्ज 1- है. तो अब अगर आपसे पूछें कि कोबाल्ट पे क्या चार्ज है, चार्ज ऑन कोबाल्ट, तो क्या +3. बताओगे? सर वो टोटल करके कर लेंगे. हाँ, टोटल करके कैसे होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -4, क्योंकि OH पे -1 है, तो यू हैव 4 OH. एंड कोबाल्ट पे चार्ज यू डोंट नो, X, एंड ओवरऑल चार्ज इज 1-. सो X हैपेंस टू बी +3, तो कोबाल्ट पे चार्ज इज +3. राइट? अब ये जो शेप है, इसके 2 मार्क्स होंगे, और ये एक मार्क का क्वेश्चन होगा. ये शेप का नेम बताना, कोऑर्डिनेशन नंबर, चार्ज, और फिर ड्रॉ करने का भी कह सकते हैं आपको. राइट बेटा? अच्छा, एनी क्वेश्चन बेटा इसमें? नहीं सर. अच्छा, तो देखो, अगर के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मैंने किया. अच्छा, ये देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स में? 2. कोऑर्डिनेशन नंबर जब 2 हो ना, तो द शेप विल बी लीनियर. ठीक है? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो फिर शेप विल बी लीनियर. ठीक है? तो अब हम इसको टेबुलेट कर देते हैं, इस डेटा को, इन शेप्स को, क्योंकि शेप्स आपको कहा जाएगा कि ड्रॉ करें. तो बेटा हम एक टेबल सा ऐसे बना लेते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर और फिर शेप. ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर. अच्छा, इसमें उस तरह डिटेल्ड शेप्स नहीं है जो AS में आपने पढ़ी थी. ये 4 डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं, आप बस ध्यान में रखें. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, तो शेप विल बी लीनियर. और लीनियर शेप, लेट से मैं कोई एग्जांपल बता दूं आपको. ये निकल, एंड दिस वन इज Cl विद लोन पेयर. ये मैं वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 हियर, एंड ओवरऑल चार्ज इज ओवरऑल चार्ज इज 1+. ठीक है? तो बेटा आप बताओ, चार्ज सेंट्रल मेटल आयन पे क्या चार्ज होगा? +3. चार्ज ऑन मेटल. जी, इधर मेटल पे क्या चार्ज होगा बेटा? +3. +3. शाबाश, क्योंकि +3 निकल पे क्लोरो नेगेटिव लिगेंड्स हैं, तो ओवरऑल चार्ज 1+ तभी आएगा. ठीक है? अच्छा, फिर बेटा द नेक्स्ट सिचुएशन इज कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और शेप 2D हो, तो फिर शेप का नेम क्या होगा? सर 3 Square नहीं हो planar. सकती? जी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं हो सकती? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होती है, यहाँ आपके सिलेबस पे नहीं है. अच्छा सर. सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं रखा गया. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और 2D शेप हो, तो दिस विल बी स्क्वायर प्लेनर. दिस विल बी स्क्वायर प्लेनर. तो स्क्वायर प्लेनर को फिर अभी मैंने डिस्कस किया था कि लेट से मैं कोई कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, ये यू नीड टू ड्रॉ स्क्वायर प्लेनर लाइक दिस. ठीक है? अच्छा, लेट से कि ये CN लिगेंड्स हैं.
ये CN लिगेंड्स है। अब बताएं इसका अगर ओवरऑल चार्ज गिवन हो 3-, एक मिनट, इसका अगर ओवरऑल चार्ज गिवन हो 1-, सॉरी, तो फिर कोबाल्ट का क्या चार्ज होगा? +3। कोबाल्ट का चार्ज +3 होगा। बेटा बाकी बच्चों को समझ आ रही है कोबाल्ट का +3 क्यों होगा? जी सर, आ रहे सर। ओके बेटा, क्योंकि CN जो है ना वो नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव लिगेंड से -4 लिगेंड्स का होगा और कोबाल्ट का +3 होगा, तो तब ओवरऑल 1- बनेगा। ठीक है। अच्छा, एंड नेक्स्ट सिचुएशन है इसके, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और शेप 3D हो, फिर बेटा फिर इट विल बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, फिर आपने टेट्राहेड्रली ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के मार्क्स होंगे। ठीक है, अब इसको टेट्राहेड्रली ड्रॉ करना है। लेट मी ड्रॉ इट। ओके, सो सपोज कोई हम ले लेते हैं लिगेंड ये Ni, दिस वन, सर दिस वन। जी बेटा, कोबाल्ट वाले को बना सकते हो टेट्राहेड्रल ऊपर वाले को? वो एग्जामिनर जो आपको देंगे ना उस तरह से आपने बनाना है। ऊपर वाला यू आर नॉट सपोज टू नो कि ये वाला टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लानर है। आपको पेपर में इंफॉर्मेशन मिली होगी कि ये 2D है या 3D है, उस तरह से फिर आपने बनाना। ठीक है सर। आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा 3D है कौन सा 2D है। एग्जामिनर ने कोई ना कोई हिंट दिया होगा आपको, ये 2D है ये 3D है, राइट? अच्छा, अब अगर ये मैं इस तरह से बनाऊं और ओवरऑल चार्ज इसका मैं ओवरऑल चार्ज बेटा ले रहा हूं +2, तो सेंट्रल मेटल आयन पे क्या चार्ज होगा? +6। जी बेटा, सेंट्रल मेटल आयन पे क्या चार्ज होगा? +6। +6 होगा बेटा। नहीं सर, +2 होगा, +2। बेटा अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया न्यूट्रल +2। लिगेंड है, तो अमोनिया का कोई चार्ज नहीं है, तो फिर ये जो +2 है ये सेंट्रल मेटल आयन का ही चार्ज है। सेंट्रल मेटल आयन इज +2 इन दिस केस। समझ आ रही है? और जो शेप्स में लास्ट जो शेप है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो यानी 6 डेटिव बॉन्ड्स हो, तो फिर शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल शेप यू रिमेंबर, ऑक्टाहेड्रल शेप को कैसे ड्रॉ करते हैं? ये देखें, 2 बॉन्ड्स ऐसे लें, फिर 2 वेजेस लें और 2 डॉटेड लाइंस लें। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। तो लेट से हम कौन से लिगेंड्स ले लें इसमें? क्लोरो लिगेंड लेट से। ये लिगेंड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, लिगेंड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। CN, जरूरी नहीं कि एक जैसे लिगेंड्स हो। ठीक है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट होगी और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद फिर ओवरऑल चार्ज होगा। तो लेट से ओवरऑल चार्ज इज 2-, तो कॉपर पे फिर क्या चार्ज होगा? 2+। हाँ, कॉपर पे 2+ क्यों है बेटा? Cl नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है और H2 न्यूट्रल है। हाँ, H2O न्यूट्रल है और Cl भी नेगेटिव है, Cn भी नेगेटिव है, तो -4 फ्रॉम लिगेंड्स एंड ओवरऑल इज -2, तो इट मींस कॉपर इज +2। तो ये शेप्स हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो शेप विल बी लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो फिर इट डिपेंड्स कि 2D शेप है या 3D। 2D है तो स्क्वायर प्लेनर, 3D है तो टेट्राहेड्रल, एंड इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 तो देन शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल, राइट? अच्छा, अब अगर एग्जामिनर आपको कहे कि ड्रॉ
ड्रॉ शेप ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स अगर आपको दे दे, तो बेटा इसकी शेप आप कौन सी वाली शेप ड्रॉ करोगे? octahedral ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हाँ, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये इसको ड्रॉ करने के 2 मार्क्स होंगे। 2 मार्क्स का यूजुअली क्वेश्चन होता है, इसको ड्रॉ करना। अच्छा, जब भी आपने ड्रॉ करना है तो इस बेटर के पहले आप ऑक्टाहेड्रल के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर्स को शो कर लें। शो, ये 2 वेजेस शो करें लाइक दिस, 2 डॉटेड शो करें लाइक दिस, और 2 सॉलिड लाइंस। तो ये अब ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगी। अब आप लिगेंड्स को कहीं भी जिधर प्लेस करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। इट्स योर चॉइस कि अमोनिया कहां प्लेस करते हैं और H2O जिधर, जहां, इट्स योर चॉइस, जैसे भी आप प्लेस करना चाह रहे हो। शेप अगर है तो इट्स बेटर के यू शो द लोन पेयर, एंड दिस इज H2O, दिस इज H2O, दिस इज H2O, एंड दिस इज H2O। ठीक है, एंड ओवरऑल चार्ज इज 3+। दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ ऑक्टाहेड्रल शेप। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि चार्ज ऑन कोबाल्ट, 3+, हाँ, चार्ज ऑन कोबाल्ट इज 3+, +3। आपको कैसे पता चला कि +3 है? लिगेंड सारे न्यूट्रल है। लिगेंड सारे न्यूट्रल हैं। ओके, तो फिर ओवरऑल जो चार्ज है वो मेटल से आ रहा है, तो मेटल विल बी 3+, क्योंकि लिगेंड्स इस केस में सारे न्यूट्रल हैं। राइट बेटा, तो हमने आज कॉम्प्लेक्सेस की शेप पढ़ी, और हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे बेटा। आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्सेस में थोड़ी सी शेप्स की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, एंड देन विल प्रोसीड विद आइसोमेरिज्म। अच्छा बेटा, मैंने स्टार्ट में कहा था